Thanks for joining us back here on the Urban Debate at 9 p.m. We move on to the third big conversation point, and this is a non-stop story that we've been covering here, our big focus for past several days now. And this is the farmers' protest that's now led to finally a conversation between the central government and various representatives of the farmers group. Today, this meeting went on for over 6 hours, viewers. At the Vigyan Bhavan, the meeting between the central government and the farmers' representatives, to the point that even when they took a break to eat their meals, we are given to understand that the farmers got their own food, their own langar, and didn't really eat the food that was available at Vigyan Bhavan. That's how they are, in all kinds and ways and fashions possible, driving home the point that they want them to be heard, their demands to be listened to, a proper conversation done with the government. Unless and until that is done, they will not withdraw their protest. So today's talks were inconclusive, but there will be another round on December 5th, we are given to understand. Until then, the farmers' protest will continue. What is interesting is, though attempts being made from both sides, especially from the government side, to really reach out to the farmers. The agriculture minister today again came and spoke, and he said, we are assuring that the MSP will not change in the future. We are giving you this assurance. Now, they have said that repeatedly. Point is, will they be ready to write it down in written now at some point and give it to the farmers? Let's say good evening to those who are joining us right now on this conversation. And I have Gopal Agarwal, National Spokesperson for the BJP, Moini Mohan Mishra, All India Secretary for the Bharatiya Kisan Sangh, and Abhimanyu Kohar, National Coordinator for the Rashtriya Kisan Mahasangh, also joining us this evening. Mr. Gopal Agarwal, let me begin with you. The farmers are still very adamant on repealing all the 3 laws. Is that still something on the table for the government? Can the government really look at repealing these laws and then coming out with a fresh set of regulations which are agreeable to all sides? Tanvi, I would like to just clarify here that these laws were nothing which the government is alone admit. These laws have been discussed, these reforms, for last 20 years. And even the State Agriculture Ministers Committee had recommended market reforms. Even this Standing Committee on Agriculture, in its report, in 62nd report, has extensively talked about market reforms. And after much debate, these ordinances were passed in June, and after that, everywhere. And now this law has been, these 3 bills have been converted into law. So government is very clear that this was the demand of the farmer sectors. All agriculture economists everywhere, everyone was agreed to this. And we also are very sure, confirmed, and confident that these are in the interest of the farmers community. If there are certain clauses which the farmers think that will harm their interest, government is ready to discuss them and amend them. So the law in itself, nothing. It cannot be just a blanket repealment of law. If anybody is adamant on that, that's quite unjustified. But if there are certain clauses which they say that this will ultimately dismantle APMC, it will affect the in the agreement to sell. There are certain clauses with regard to not going to the court. All those clauses will be taken care of, even to the extent the agriculture minister has said that even if the farmers think that outside the mandis, the private markets are they are getting a better benefit and not level playing field with regard to APMC mandis, the government has said that we are ready to listen on to that. So then I think there is very little other issue left in these 3 bills. For the other demand of farmers with regard to legalizing the APMC, what commitment they want from the government with regard to MSP, etc., that the government has said that it is in the discussion stage, and the final some offers we have received from the farmers, written also and verbal also, we have understood their apprehensions also, their emotional content also, and their problems at the ground.
So the day after tomorrow, I think it will be resolved. So nothing will come out of adamantly. It has to be dialogue on both sides. And it cannot be said that only 15, 16 crore farmers alone are in trouble. There are many Okay. segments of society which are also involved into this. There are consumers, then No, of food course there security. are. But you are holding a conversation with a bunch of representatives of thousands and lakhs of farmers who are protesting. So let's just talk about what they want, because that's what the government is listening to. Abhimanyu Kaur, National Coordinator for the Rashtriya Kisan Mahasangh, was part of these conversations. Mr. Kaur, are you, अभिमन्यु कौर, क्या आप थोड़े कॉन्फिडेंट है कि इस बातचीत से कुछ हल निकल सकता है, कि सरकार अब आपकी बात सुन रही है? देखिए, आज मैं स्वयं भी उस मीटिंग में मौजूद था। तो जब हमने पॉइंट वाइज पॉइंट ये बताया कि किस कानून में क्या कमियां हैं, तो हमने पूरी वो लिस्ट जब उनके सामने प्रेजेंट की, एक एक करके बताया हमारे शीर्ष नेतृत्व ने। तो उसके बाद सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के पास हमारे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, ये प्रस्ताव पेश किया गया कि भाई हम 8 मुद्दों पर संशोधन करने हेतु विचार करने के लिए तैयार है। तो उसके जवाब में किसान नेताओं ने ये कहा कि संशोधन करने से काम नहीं चलेगा, आप कृषि कानूनों को निरस्त कीजिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। तो उसके बाद सरकार ने कहा कि हम अगले दौर की बातचीत 5 तारीख को फिर से करेंगे। उससे पहले कल सुबह 11 बजे सभी किसान संगठनों की बैठक होगी सिंघू बॉर्डर पे, और उसमें आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, हमारा एक ये कहना है कि डायलॉग हमेशा होना चाहिए, बातचीत हमेशा होनी चाहिए, और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यही कहा है कि बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि जो भी हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा, और उसके पैरेलली हमारा आंदोलन, बातचीत के पैरेलली हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और लगातार धरने स्थलों पे हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें तन्वी जी, मैं एक लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि वो 8 मुद्दों पर संशोधन करने के लिए विचार हेतु उन्होंने जब प्रस्ताव दिया, तो उससे आज एक बात साबित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी सरकार के सभी मंत्री बहुत दिनों से ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि भाई किसान तो गुमराह हो रहे हैं, किसानों को कोई समझ नहीं है, उनको बहकाया जा रहा है, उनको कानून अभी समझ नहीं आए हैं। लेकिन आज जब किसान नेताओं ने एक एक करके सभी पॉइंट रखे, तो सरकार के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए, और उसके बाद उन्होंने ये स्वीकार किया कि इनमें 8 समस्याएं तो हैं। उन्होंने कम से कम 8 समस्याएं को तो स्वीकार किया, और उसमें वो बदलाव करने हेतु भी वो तैयार दिख रहे हैं। लेकिन हमने साफ कहा कि हमें ये तीनों कानून रद्द चाहिए, हम इनको रद्द करवाएंगे और एमएसपी गारंटी कानून लागू कराएंगे। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि देश का किसान ना तो बहका हुआ है, देश का किसान ना गुमराह हो रहा है, देश का किसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि किस तरह ये 3 कृषि कानून उसके लिए मौत के फरमान है। तो जो ये मोदी सरकार दुष्प्रचार कर रही थी, आज उसकी पूरी पोल खुल गई है। और गोपाल अग्रवाल, दिस इज ट्रू, मैं ये बात मानूंगी कि अब क्योंकि सरकार किसानों से बात कर रही है, और एक नहीं, अब तो मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस हो गए। आज तो 6 घंटे से ज़्यादा चली है बातचीत दोनों साइड्स में। फिर परसों भी मीटिंग होगी। बार बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर का बयान भी आ रहा है कि आप प्रोटेस्ट ख़त्म करें और चलिए बातचीत करें। तो फिर ये कहना मिस्टर गोपाल अग्रवाल दैट इट्स ऑल पॉलिटिकल एंड इट्स ऑल बीइंग डन बाय द कांग्रेस पार्टी, इज दैट फेयर? नहीं, हम तो कह नहीं रहे। किसी ने, कुछ लोगों ने कहा होगा, बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड ये नहीं है। हमारे गृह मंत्री ने भी कह दिया कि किसानों का आंदोलन है। पॉलिटिकल लोगों को भ्रमाया है कुछ लोगों ने। अभी भी आप कांग्रेस के, मैं ये नहीं कह रहा कि आंदोलन पॉलिटिकल है, लेकिन कांग्रेस, आप और ये जो कुछ पार्टीज हैं, भीम आर्ट पार्टी है, ये जो है, वो लोग उनको मिसगाइड कर रही हैं, मिसप्रचार कर रही हैं, चाहे मीडिया के थ्रू कर रही हैं। लेकिन ये आंदोलन पॉलिटिकल है, ये तो हमने कभी ऐसा ऑफिशियल स्टैंड बीजेपी ने नहीं लिया है। मैं भी आपको ये इस बारे में स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। गृह मंत्री जी ने खुद कहा है। इतनी सारी डिबेट्स करी हैं, रोज जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो यही बोलते हैं, सारी तो ब्लेम वो कांग्रेस पार्टी पे ही डालते हैं, ऑपोजिशन पे ही डालते हैं, मीडिया पे भी डाल देते हैं, स्वराज अभियान पे डाल देते हैं कि इन लोग सबने मिलके इन फार्मर्स को गुमराह कर दिया है, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, आपने उनको गलत बता दिया है, आप उनको गलत चीजें समझा, कांग्रेस पार्टी ने समझाई हैं।
आज आप कह नहीं, रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल नहीं है। मैं वो उसमें रिकंसाइल करके बता देता हूँ। 20 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया ये जो किसान आंदोलन में खर्च हुआ है, इनके ऑफिशियल खुद ही स्टेटमेंट कल आए थे, मैंने बीबीसी में सुना और भी जगह किसान नेताओं ने, प्रेम सिंह जी ने कहा कि 15 करोड़ हम ऑलरेडी खर्च कर चुके। तो ये 15 करोड़ किसने फाइनेंस किया, ऐसे सवाल तो उठेंगे। दूसरी बात ये, हमने क्या कहा कि कांग्रेस और कुछ राजनीतिक लोग, दल, हम जब सवाल बीजेपी से पूछते हैं आपको फंडिंग कहां से मिली, आप तो नहीं बताते। नहीं, कैसे नहीं बताते, हमारी तो रिटर्न। देखिए तन्वी जी, अब किसानों को फंड सपोर्ट कौन कर रहा है वो आपको जानना है, और जो पार्टी हमारा देश चला रही है उसको पैसे कौन दे रहा है वो आपको नहीं बताना है। तन्वी जी, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता डिबेट, आज किसानों की समस्या पे रखना चाहता हूँ। वो किसी दिन और कर लेना कि बीजेपी की फंडिंग कहां से होती है, मैं आपको अकाउंट दे दूंगा, मैं चार्टर्ड तो फिर then Mr. Gopal Agarwal, please don't insinuate certain things on my show as well. If you're going to genuinely give the respect to the farmers, अगर आप उनको रिस्पेक्ट देके उनकी बात सुनने की बात कर रहे हैं, उनके इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे चीजें मेरे व्यूअर्स के दिमाग में मत डालिए कि कहां से पैसा आया, कौन उनको भड़का रहा है। मेरा भी उतना ही पॉइंट है, मुझे भी और कुछ बात नहीं करनी, फार्मर्स के इश्यूज के बारे में बात करनी है। जी बोलिए। मेरे को, हाँ, मैं जो कह रहा हूं, कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग स्वराज अभियान, भीम पार्टी, यह लोग उनको गलतफहमी में डाल रहे हैं, यह हमने कहा है। यह आंदोलन, उनकी क्या औकात है कि इतने बड़ा आंदोलन खड़ा कर लें? उनकी कोई औकात है कांग्रेस की? वो 1000 लोग भी नहीं इकट्ठा कर सकते। वह लोग इनको इंस्टिगेट कर रहे हैं, वह लोग इनको भरगला रहे हैं कि एमएसपी हटा ली जाएगी, एपीएमसी खत्म हो जाएगा। यह जो लिंकिंग है, इसको हम कह रहे हैं, हम ये आंदोलन को नहीं कह रहे। तो जिसने कहा है मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारी ऑफिशियल स्टैंड यही है कि आंदोलन किसानों का है, उनकी समस्याएं बहुत सारी हैं। यह रिफॉर्म बिल को लेकर हमारी इंटेंशन बहुत क्लियर है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, अमरिंदर सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्वराज अभियान हो, चाहे भीम आर्मी हो। लेकिन किसान लोगों ने अब इसको अच्छी तरह से, लेट्स जस्ट से दिस मिस्टर गोपाल अग्रवाल, लेट्स जस्ट एग्री ऑन दिस कि किसानों को खुद का क्या, उनका खुद का फायदा, खुद का नुकसान क्या चाहिए, ये जो लॉज है उनको कैसे असर करेंगे, कौन सी पार्टी उनके साथ है या नहीं, और उससे क्या उनको फायदा होगा, वो भी समझ में आता है। The farmers who can gather themselves in such large numbers, organize such protests, peacefully have conversations with you on issue by issue, clause by clause of these 3 laws, and have an in-depth discussion with you, are also smart enough to know which political party is just trying to take advantage of them, and which political party, if there is any, genuinely wants to help them or support them. Let me in fact bring in Moini Mohan Mishra on this. मोहिनी मोहन मिश्रा, क्या आपको लगता है कि आज की बातचीत के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद इसका सलूशन निकलेगा? सरकार अब तो एटलीस्ट बात तो सुन रही है किसानों की। हाँ, देर में सही सरकार बात सुनने को, ऐसा जैसे समाचार आ रहा है, सरकार बात सुनने को प्रक्रिया शुरू की, अच्छी बात है। जब ये ऑर्डिनेंस पहले आया जून 5 को, उसके बाद भारतीय किसान संघ ने देश, जो गोपाल जी बोल रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दे इस विषय को। जब 25,000 ग्राम समिति भारतीय किसान संघ की प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री के नाम पर प्रस्ताव दिए थे कि हम बिल को स्वागत करते हैं, मगर उसमें सुधार चाहिए, बिल किसान के हित में है, मगर उसमें किसान का जो कंसर्न है उसको एड्रेस होना चाहिए। करीब 400 जिलों में अपने यूनिट ने रिप्रेजेंटेशन डाला, मगर कोई रेस्पॉन्स सरकार से नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो व्यापारी आएंगे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि हम मांग करते थे, ये जो सही बात गोपाल जी बोले कि मार्केट ओपन होना चाहिए किसान के लिए, 1 इंडिया 1 मार्केट होना चाहिए। 90 के दशक से हम इस विषय को उठा रहे थे, और किसान को टैक्स फ्री मार्केट चाहिए, क्योंकि मंडी में अलग अलग प्रकार के टैक्स 8 से 10% किसान से लीड दिया जाता है और परेशान किया जाता है। इसलिए हम चाहते थे कि ये हो, इसलिए सरकार इसमें पहल किया, इसलिए हम स्वागत किए। मगर हम चाहते थे उस समय सारी प्रस्ताव सरकार के पास पड़ा होगा, करीब 25-30 हजार गांव समिति का प्रस्ताव उन्हें पड़ा होगा, जे
जो ट्रेडर आएंगे उनका एक सरकारी पोर्टल में उनका नाम दर्ज हो, क्योंकि गांव के किसान, छोटे किसान, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का किसान नहीं है, गांव का किसान परेशान हो सकता है, इसके एक पोर्टल में डालना चाहिए। क्या दिक्कत है उसमें करने के लिए? ये जो सारे व्यापारी लोग आएंगे उनका बैंक गारंटी रहे, क्योंकि किसान को ठग, कोई भाग गया, किसान को पेमेंट नहीं किया तो बैंक उसका भुगतान कर दे। हम चाहते हैं कि किसान को न्यायालय, किसान न्यायालय की शुरुआत हो, अभी समय लगेगा मगर उसका शुरुआत हो राज्य सरकार की सहमति के साथ, वो भी हमारा मांग में था। तो और हमने बताए थे कि मंडी के अंदर और मंडी के बाहर एमएसपी के नीचे खरीदारी ना हो, इसके लिए राज्य और केंद्र मिलकर बैठकर, क्योंकि ये दोनों विषय अलग अलग है, इसके लिए अलग कानून बनाए, ऐसा हमने मांग किए थे। सरकार आनाकानी कर रही थी। अभी जब रोज रोज रास्ते में आए तब सरकार को नींद टूटा, तो अभी सरकार ने एक पहल किया, अच्छी बात है। दोनों एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, आंदोलनकारी और ये अपने सरकार, ये आगे अच्छा निर्णय पर जाए। कुछ संशोधन के साथ, ये कानून का हम पक्ष में है, मगर कुछ संशोधन के साथ अगर आंदोलनकारी और सरकार उसमें सहमत बनाते हैं तो अच्छी बात है। अभिमन्यु कौर wanted to also come in and respond. आप कुछ जवाब देना चाहते थे गोपाल अग्रवाल को? देखिए तन्वी जी, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई किसानों को मतलब इतना 15 करोड़ की फंडिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, तो मैं उनको साफ कर देना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले टिकरी बॉर्डर पे हमारे एक किसान की ठंड में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उससे पहले रास्ते में एक्सीडेंट में हमारे कई किसान शहीद हो गए। हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं हो रही है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के गांव-गांव से लोग खाना लेके आ रहे हैं हमारे लिए, सब्जियां लेके आ रहे हैं, फल फ्रूट लेके आ रहे हैं, आटा लेके आ रहे हैं, कंबल लेके आ रहे हैं, रजाइयां लेके आ रहे हैं, आर्थिक सहायता कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का खुद का आंदोलन है। ये उनके पैसे से आंदोलन हो रहा है, करोड़ों किसानों के पैसे से। आपने ये बहुत सही बात की। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि किसान वहाँ पे जब आज सरकार के पास भी गए बात करने, तो वो अपना खुद का खाना लेके आए थे। उन्होंने कहा कि जो उनके साथी जहाँ जो धरने पे बैठे हैं, वो जो खाना खा रहे हैं यहाँ भी वैसे ही खाएंगे वो, और अपना खुद का टिफिन लेके आए थे। अभिमन्यु कौर, आपकी फ्रीज जो फीड है वो फ्रीज हो गई थी, आपकी बात हम सुन नहीं पाए पूरी, आप बोलिए। देखिए, ये जो भाजपा के प्रवक्ता जो आरोप लगा रहे हैं कि इनको फंडिंग हो रही है, ऐसा कहकर ये देश के करोड़ों किसानों का अपमान कर रहे हैं और इस देश का अन्नदाता इन्हें माफ नहीं करेगा। आज की मीटिंग में हमारे सभी किसान अपना हम खाना खुद लेके गए, अपनी चाय हम खुद लेके गए। हमने ये साफ कर दिया कि भाई जब सरकार हमारी बातें मानने को तैयार ही नहीं हो रही है, तो हम किस उसे मुंह से सरकारी खाना खाएं। हमने कहा खाना भी हमारा अपना होगा, चाय भी हमारी अपनी होगी। हमने वहां पे जमीन पे बैठ के हमारे किसान नेताओं ने खाना खाया, बिल्कुल सरल उसमें अंदाज में। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई एक और अभी कोई बोल रहे थे कि भाई इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखिए हमारे किसान नेताओं ने आज साफ कर दिया कि संशोधनों से काम नहीं चलेगा। ये तीनों कृषि कानून ओके अभिमन्यु कौर शायद ट्रैवल भी कर रहे हैं, अभी वो मीटिंग करके आए, तो बार बार उनके कॉल में नेटवर्क में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। बट आई हैव अ क्वेश्चन एंड इफ आई कैन टेक दैट क्वेश्चन बैक टू मिस्टर मिश्रा। मिस्टर मिश्रा, सो मेनी डिफरेंट फार्मर ग्रुप्स आर देयर, कैसे आप किसी एक चीज़ पे अग्री कर पाएंगे? जब सरकार से बातचीत हो रही है, सरकार कुछ ऑफर करेगी, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि जो नेगोशिएशन हो रहा है या जो ऑफर किया जा रहा है वो सबको अग्रीएबल है? सब किसान तो अलग अलग राज्य से आए हैं। नहीं, सब एग्रीवेबल नहीं होंगे। जो मेजर किसान है वो तो एग्री होना चाहिए इस विषय पर। उसमें एक दूसरा ऑप्शन भी सरकार के पास है, मैं उसको सुझाव देना चाहता हूँ। 17-18 बजट में सरकार ने, केंद्र सरकार ने 22,000 ग्रामीण हाट को इम्प्रूवाइज करने के लिए एक 2,000 करोड़ की कॉर्पस फंड रखा था। वो कहाँ गया? अगर उसको भी सरकार कर देते हैं तो किसानों को बेचने का और खरीद करने का आसान हो जाएगा। ये सारी झंझट में निकल जाएंगे किसान।
देखिए, किसान को बाकी संगठन का अलग अलग व्यू है, मगर मंडी के अंदर जो समस्या है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। विशेष करके ये जो पंजाब हरियाणा वाला मामला है, वहां मंडी के अंदर किसान से 4 से 6% मंडी टैक्स, आरती टैक्स, एफएक्यू के नाम पर उसको रिजेक्ट करना, और वहां कार्टेल बैठकर 2000 का गेहूं को 1500 में खरीदना, ये एक आम बात है। इसमें सुधार होना ही चाहिए। ये संगठन सारे किसानों को इस विषय पर, अगर किसान के बारे में चर्चा हो रहा है तो किसान को एड्रेस करना चाहिए। मंडी कैसे चलेगा मंडी वाले सोचे, आरती कैसे चलेंगे वो सोचे, मगर किसान का जो उसमें तकलीफ है मंडी के अंदर, उसका भी सुधार होना चाहिए। इस विषय पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होकर उसके सुधार करने के लिए किसान लोग संगठनों ने भी आगे आना पड़ेगा। My last question, Mr. Gopal Agarwal, to you before we wrap up this conversation also is that is the government willing to consider the possibility of giving it in return कि MSP मिलेगा farmers को, वो नहीं जा रहा है. This has become their biggest demand apart from, of course, repealing the laws. I think, Tanvi, the issue is not only that the MSP सरकार को केंद्र सरकार डिक्लेयर करेगी. Issue is कि nobody can purchase below the MSP. That demand is quite impossible, because the total production of food grains is quite in surplus, and the demand for that food grain is low. So total purchase cannot be at the MSP price. That is one thing. Otherwise, government has no problem that the MSP will be declared. It's a central government only administratively declares MSP. It is for the state governments to procure at that whatever they want to procure. And at present, it is only 15 to 20% जो procurement होता है. तो मुझे लगता है कि इशू ये नहीं है कि MSP हर बार डिक्लेयर करें या नहीं करें, इसके ऊपर तो सरकार कमिटेड है ही. बट जो ये कहीं डिमांड कोई करने की कोशिश करे कि MSP को लीगलाइज करने का मतलब यह है कि उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता, यह इशू मुझे लगता है कि इट इज करंट फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेट और सेंटर की पॉसिबल नहीं है. और जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, डिक्लेयर करना है, उसके लिए तो सरकार. Gopal Agarwal, hasn't it become clear that the farmers are more concerned of uncertainty tomorrow than the assurances of a better income that you're giving them? उनको ये डर है कि कल हमें इनकम मिलेगी भी कि नहीं. अगर हमको मार्केट के बाहर बेचना पड़ा और मार्केट धीरे धीरे उसकी इंपॉर्टेंस मंडियों की चली गई और बाहर ही बेचना पड़ा, तो क्या एश्योरेंस है कि हमें क्या दाम मिलेगा? ये है सबसे बड़ा सवाल. इट्स नॉट टू से यू विल गेट बेटर इनकम, इट्स टू से विल यू गेट एनी इनकम. तन्वी जी, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वोट के ऊपर हमारा एग्जिस्टेंस है, और इस देश में 60 करोड़ से ऊपर किसान और रूरल सेक्टर में लोग रहते हैं. तो उनका अहित करके हम कोई सत्ता में आ नहीं सकते बार बार. इतनी चीज बेसिकली, अगर ये अपने आप में ये अकेला स्टेटमेंट फार्मर्स को एश्योर कर सकता है कि उनको अपनी शक्ति, डेमोक्रेसी में उनकी जो शक्ति आप लोगों ने भी देखी और हम तो जानते ही हैं, हम लोग जानते हैं कि वोट में कितना पावर होता है, और हमें पता है सत्ता में रहने के लिए सबका समर्थन जरूरी है. तो इतना हमारा एश्योरेंस या हो या ना हो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर ही पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारी सरकार जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता में रह रही है, जीतती आई है और आगे भी जीतना चाहती है. कोई हमारी इच्छा खत्म नहीं हो गई कि हम अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे. तो हम समझते हैं कि किसानों का हित करके हम सत्ता में नहीं आ सकते. इसलिए ये एश्योरेंस उनको अपने आप है कि उनका हित नहीं होगा. हाँ, हमारा रिकंसाइल हित का बारे में हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि लार्जर कंज्यूमर का भी देखना है, फाइनेंसेस भी देखनी है, गवर्नेंस भी देखनी है, इंप्लीमेंटेशन के लिए कई चीजें भी देखनी है, करंट सिचुएशन भी देखना है. उन सबको सरकारों को रिकंसाइल करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली लार्जर इंटरेस्ट किसानों का हम ध्यान रखेंगे.
All right, that is the assurance coming in from the national spokesperson of the BJP. We're going to look out for the interests of the farmers. We are, after all, a political party and our votes matter to us. Thank you so much to all of our panelists for joining us. Viewers, what we have seen today are exhaustive conversations. Farmers still intent that until their demands are met, they're not going to call off the protest. The government, though, definitely seems to be reaching out in more than one ways to the farmers, and the kind of signals that are being sent is, okay, let's talk, let's see what we can fix, let's see what we can change. That's a good sign. To what extent will they go, and will they really manage to end the deadlock and call off this massive protest is the big question. But at least the farmers are in our country are finally getting heard. At least, rather than attacking them, rather than calling them misled, rather than calling them calling them political puppets, they're being taken seriously for the issues that they have, and the government is listening to them. We can only hope from here on that the genuine issues also get resolved. Thank you so much for joining us on this conversation.